Good morning, friends. So, in the last class we did about the meristematic tissue, and today we are going to start with the permanent tissue. Okay. Now, permanent tissue. What is the difference between, first of all, meristematic and permanent tissue? Meristematic tissue is a tissue that always remains in the state of division. That is, it continuously divides. Okay. Then it has certain for that purpose it has certain modifications also. It has no vacuole. Plastids are not present, or if they are present, then they are underdeveloped, not functional. Then it has a cell wall which is very thin. And then we talk about the permanent tissues. So permanent tissues are the tissues which have lost the power of division. Okay. Now whenever we talk about the power of division, so when I say that they have lost the power of division, so it simply means that permanent tissues have attained a specific function, and when they have attained a specific function, then they lose their ability to divide. Okay. So what first major difference between permanent and meristematic is, meristematic tissue has a power of division, it always remains in a state of division, and the permanent tissues have lost their ability to divide, and hence they started performing a specific function. Okay. So this process, when a permanent tissue takes up a specific shape, specific size, and a specific function, and that process is called as differentiation. Okay, please learn this. This is important. I'm marking in this. This process of taking a permanent tissue, permanent shape, size, and a function is called as differentiation. Okay. Now cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissue. That is, the first cell which is formed is always the meristematic tissue. It then divides, and then attains a particular shape, size, and performs a specific function. Then it is called as the permanent tissue. So that means meristematic tissue ultimately differentiates into the permanent tissue, different types of permanent tissue. Okay. So within the permanent tissue we have two different forms, that is simple permanent tissues and complex permanent tissues. Now simple को simple क्यों बोलते हैं? Because simple permanent tissues are made up of only one type of cells. Okay. Let's read it first. A few layers of cells form the basic packing tissue. Packing tissue मतलब सिर्फ covering tissue जो होता है. Okay. This tissue is parenchyma, a type of a permanent tissue. Okay. The first cell that is always formed from the meristematic tissue is the parenchyma tissue. Parenchyma के बाद फिर बनता है collenchyma and then sclerenchyma. Okay. So it consists of relatively unspecialized cells with thin cell wall. Now parenchyma cells are living. They perform the function of photosynthesis, storage, absorption, secretion. So hence their cell wall is very thin, because when they will absorb, so they will enlarge, the cell will enlarge, and if the cell wall is thick, then the cell will not be able to perform its specific function. Okay. And for this purpose also they are loosely packed. So it is one of the properties of parenchyma that it is relatively unspecialized cells with thin cell wall. They are living and they are loosely packed tissues. Okay. This is the property of parenchyma tissue. So they are usually loosely packed, so that large spaces between cells, which are called as intercellular spaces, दो सेल के बीच की जगह जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, दो सेल के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस. ओके. सो दिस टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड्स. In some situations contains chlorophyll and perform photosynthesis. I already told you the functions of parenchyma. It absorbs, it secretes, performs photosynthesis. So when it performs photosynthesis, so it has a specialized tissue or a specialized pigment that is called as chlorophyll, and hence it can perform the photosynthesis. Okay. And then if the parenchyma contains chlorophyll, then it is called as chlorenchyma. ठीक है, क्लोरो से वर्ड आ गया स्टार्टिंग का क्लोरो, एंड देन parenchyma से हमने वर्ड ले लिया renchyma, that is chlorenchyma. Okay. So that is, we can divide parenchyma into various types. First is chlorenchyma, second is erenchyma. erenchyma मतलब जब parenchyma cells के पास एयर कैविटीज़ आ जाएंगी. एयर कैविटीज़ आने से क्या होगा? वो लाइट वेट हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल थर्मोकोल आप देखते हो, थर्मोकोल के बीच में एयर स्पेसेस बहुत सारे होते हैं. So because of that the thermocol never sinks in the water, it always floats. So in the same manner, when parenchyma cells have air cavities, so it always floats on the surface, it never sinks in the water. Okay. So whatever the hydrophytes मतलब water plants that float in the water, they contain parenchyma with air cavities, and this type of tissue is called as erenchyma. Okay, here it is written.
Parenchyma cells with air cavities are called as erenchyma. Parenchyma cells with chlorophyll are called as chlorenchyma. Okay. Then the parenchyma of stems and root also store nutrients and water. ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज पेरेंकाइमा. इसका एक बार फटाफट देख लेते हैं वापस से. इट इज़ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. वाई इट इज सिंपल परमानेंट? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. सेल्स कैसे होते हैं? थिन सेल वॉल होती है, हमेशा सेल्स लिविंग होते हैं, और लूजली पैक्ड सेल्स हैं ताकि वो दूर दूर प्रेजेंट हो. ठीक है, दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में स्पेसेस आएंगी एंड दैट स्पेसेस आर कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, अब इसके फंक्शन पे आते हैं. ये टिश्यू करता क्या है? ये स्टोरेज भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब इसके जनरल फंक्शंस हैं. जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो हम इसको स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज क्लोरेंकाइमा. दैट मीन्स पेरेंकाइमा cells with chlorophyll are called as chlorenchyma. In the same manner, when we talk about water plants, hydrophytes, so in these plants, parenchyma cells has air cavities so that the water always floats on the water. It provides buoyancy. Buoyancy मतलब होता है एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ ताकि वाटर जो प्लांट है वो कभी भी सिंक नहीं हो जाए पानी के अंदर. ओके, so hence it is called as erenchyma. The parenchyma cells with air cavities which provide buoyancy to the plants to help them to float. Then the parenchyma of stem and root also store nutrients and water. ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज कॉलिनकाइमा. अब कभी आपने देखा है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, जैसे आजकल जो सीज़न है दैट इज़ बहुत विंडी वो होता है एनवायरनमेंट. जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो कोई भी जो प्लांट है उसकी लीफ अपने आप टूट के गिरती नहीं है, ऑल्दो वो कितना भी झुक जाए, कितना भी हो जाए. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज इट कंटेन्स अ फ्लेक्सिबल एंड अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज कॉलिनकाइमा. ठीक है, सो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज कॉलिनकाइमा, जो कभी भी प्लांट की जो लीफ है उसको टूटने नहीं देता, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ में स्ट्रेंथ भी देता है. इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लीफ स्टेम, अगर एक छोटी सी नई स्टेम निकली है जो ग्रीन कलर की है, अभी ब्राउन नहीं हुई, जो ग्रीन कलर की स्टेम है वो भी बेंड होती है, लेकिन वो टूटती नहीं है कभी मेन प्लांट से. उसका रीज़न कि इट हैज़ कॉलिनकाइमा टिश्यू. ठीक है, सो इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स. ठीक है, मैंने आपको बोला फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी हो गया. ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, below the epidermis, and the cells of this tissue are living elongate and irregularly thickened at the corners. ठीक है, there is very less intercellular space. अब अगर हम इसको पेरेंकाइमा से कंपेयर करें तो पेरेंकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द न्यूली ग्रोन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. न्यूली ग्रोन मतलब कोई नई लीफ आ रही है, स्टेम आ रही है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है, जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, ब्राउन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. साथ साथ लीफ को टूटने नहीं देता. पेरेंकाइमा का फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज करना. ठीक है, पेरेंकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? जब हम एपिडर्मिस के नीचे आते हैं, कॉर्टेक्स वाला रीजन, वहाँ पे हमको पेरेंकाइमा मिलता है. ये कहाँ प्रेजेंट होगा? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे. ठीक है, सेल्स वहाँ पे भी लिविंग थे, थिन वॉल्ड थे, यहाँ पे सेल्स लिविंग है और थिक वॉल्ड हो गए. देन इलोंगेटेड है, वो इरेगुलरली शेप्ड सेल्स हैं पेरेंकाइमा के, एंड दे आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स. अब आप अगर ये फिगर देखते हो, दिस फिगर A1 एंड B1, ठीक है, यहाँ पे आप अगर B1 को ध्यान से देखो तो आप देख रहे हो कॉर्नर्स में रेड कलर की थिकनिंग्स आपको दिखाई हैं. सो दीज थिकनिंग, जहाँ लिखा है वॉल थिकनिंग्स, बिकॉज ऑफ दिस थिकनिंग, ये थिकनिंग पूरे सेल पे नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होती है. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिकनिंग्स एट द कॉर्नर्स, जो प्लांट है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर पाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाता है. वहाँ पे जो प्लांट का पार्ट है, ऑर्गन है, वो टूटता नहीं. ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास थिकनिंग जो है वो हर जगह नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है. ओके, तो ये आपको अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ आपको बता दिए हैं. ए पार्ट इज़ द पेरेंकाइमा, जो आपने A1 देखा, ये वाला पार्ट, दिस इज़ A1 विच इज़ पेरेंकाइमा. आप देख रहे हो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. ठीक है, ये उसका क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, सो इट इज़ क्लोरेंकाइमा. दिस इज़ B1, दिस इज़ द कॉलिनकाइमेटस टिश्यू, उसमें साइड में आपको थिकनिंग्स दिखाई हैं. देन उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, आप देखो यहाँ थिकनिंग्स हैं, रेड कलर की मार्क किया हुआ है आपको B2 में. एंड व्हेन यू मूव ऑन टू द C पार्ट, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज स्क्लेरेंकाइमा. ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा में थिकनिंग्स हर जगह होती है, पूरे सेल्स के चारों तरफ, हेंस इट इज़ अ डेड टिश्यू. ये सिर्फ
पूरे प्लांट को, मेन प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अभी इस पर चलते हैं। नाउ येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो आप बाहर प्लांट की बार्क देखते हो, दैट इज टोटली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, सो दैट दोज डेड सेल्स आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट, जब आपके घर में कोकोनट ब्राउन वाला आता है उसको हम छीलते हैं, तो जो छीलने वाला पार्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो फाइब्रस होता है, दैट इज नथिंग बट द मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, they are long and narrow as the walls are thickened due to lignin, a chemical substance which act as a cement and hardens them। ठीक है, तो अभी जो फिगर हमको C वाला दिया हुआ है, इसमें अगर हम देखें C1 में चारों तरफ से थिकनिंग्स प्रेजेंट है और बीच में लिखा है सिंपल पिट पेयर। सिंपल पिट का काम क्या होता है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्शन बनाना, क्योंकि थिकनिंग्स बहुत मोटी हो जाती हैं तो सेल आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते डायरेक्टली, हेंस वहाँ पे सिंपल पिट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट कराने में हेल्प करते हैं। देन इंडिविजुअल सेल्स, अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो बहुत पतले सेल्स होते हैं, नैरो ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब वाइट वाला पार्ट अंदर जो है, दिस पार्ट, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज़ वेरी लेस। प्लस लेस क्यों हुआ, बिकॉज इट हैज़ लिग्निफाइड थिक वॉल। ठीक है, लिग्निन आने की वजह से इसके पास बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है, प्लस थिकनिंग होने की वजह से दिस टिश्यू बिकम्स डेड टिश्यू। ठीक है, लिग्निन वहाँ पे एक सीमेंट की तरीके से काम करता है जो कि उसको हार्डन कर देता है। ठीक, ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरसेलर स्पेस बिटवीन द सेल। अब अगर हम तीनों को कंपेयर करें, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा में इंटरसेलर स्पेस होता है, कोलेन्काइमा में थोड़ा सा होता है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या था, फोटोसिंथेसिस, देन वी हैव स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सपोर्ट। कोलेन्काइमा का फंक्शन क्या था, मैकेनिकल सपोर्ट, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूली ग्रोन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द फुल ग्रोन ट्री। ठीक है, प्लस पेरेन्काइमा लिविंग, कोलेन्काइमा लिविंग, ये डेड है। पेरेन्काइमा में कोई थिकनिंग नहीं है, कोलेन्काइमा में थिकनिंग्स होती हैं एट द कॉर्नर और यहाँ पे लिग्निंग थिकनिंग्स पूरे सेल पे। ठीक है, वहाँ पे पेरेन्काइमा में कोई जो सेल है उसका शेप फिक्स नहीं है, प्लस यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोलेन्काइमा में, यहाँ पे भी सेल का शेप ऑलमोस्ट फिक्स होता है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा दे हैव अ लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स विद नैरो ल्यूम। ओके, पेरेन्काइमा कहाँ मिलता है हमको, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, एपिडर्मिस के जब हम अंदर चले जाते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टोरेज का फंक्शन होगा। कोलेन्काइमा जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, क्योंकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। एंड स्क्लेरेन्काइमा इज फाउंड इन द स्टेम अराउंड द वैस्कुलर, जो बाहर आप देखते हो बार्क का पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यूज़ के अराउंड जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मतलब स्क्लेरेन्काइमा प्लांट के सबसे बाहर, ट्री के सबसे बाहर और सेंटर में प्रेजेंट, हेंस वो दो तरीके से सपोर्ट कर पाता है, एक तो बाहर से एक्सटर्नली और एकदम प्लांट के सेंटर से, बीच में से। ठीक है, देन दिस टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ लीव्स। हम देखते हैं लीव्स जो होती हैं उसमें वेनेशंस होते हैं, वेन्स, एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जिसकी वजह से जो नट्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। द फाइनल मैकेनिकल सपोर्ट टू द फुल ग्रोन ट्री इज प्रोवाइडेड बाय द स्क्लेरेन्काइमा and to the newly grown plants it is provided by the कोलेन्काइमा। okay, अभी आपको एक एक्टिविटी दिया है। in this activity we have taken the leaves of Rio plant। okay, Rio plant को हमने उसकी लीफ ली, उसकी लीफ थिकन होती है, उसको खींचा और उसको ब्रेक ओपन कर दिया। ठीक, अब जो सबसे उसके ऊपर का जो पार्ट था दैट इज़ पील और स्किन, उसको हमने हल्का सा कट किया और फिर हमने उसको एक पेटी डिश में डाल के, सैफ्रनिन एक डाई है विच प्रोवाइड्स रेडिश कलर, वो हमने उस पर डाल दिया। कुछ टाइम के लिए हमने उसको छोड़ा एंड देन व्हेन वी सी इन द माइक्रोस्कोप तो हमको कुछ सेल्स वहाँ दिखेंगे जो कि सबसे बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट है, विच इज़ कॉल्ड एज द स्टोमेटल सेल्स, एंड दीज स्टोमेटल सेल्स आर फॉर्म बाय द गार्ड सेल्स। ठीक है, ये दो गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स जब यहाँ पे वाटर फिलअप हो जाता है गार्ड सेल्स में, सो दे बिकम टर्जिड, दे ओपन and hence transpiration takes place, and when the guard cells lose water then they close and hence transpiration, or stomata also close and transpiration stops. Okay, so they are actually talking about the outermost layer, this part of the layer which is called as the epidermal cells or the epidermis.
Now what you observe is the outermost layer of cells called as epidermis. It is usually made up of single layer of cells. So you can see this is single layer. In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. जो ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट हैं उसमें एपिडर्मिस एक से ज़्यादा लेयर की भी हो सकती है, सो एज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द एपिडर्मिस. हम प्लांट में रूट स्टेम लीव्स कोई भी पार्ट की बात करते हैं, वहाँ पे जो सबसे बाहर का टिश्यू है इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. एपी मतलब होता है ऊपर एंड डर्मिस मतलब आउटर मोस्ट टिश्यू. डर्मिस मतलब टिश्यू. ह्यूमन में डर्मिस मतलब स्किन. प्लांट पे हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द टिश्यू. सो सबसे बाहर वाला टिश्यू, सबसे बाहर वाले सेल्स इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. ठीक है, जब बाहर है तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये यू हैव टू मार्क दिस. ठीक है, अब ये एक काम इसका हो गया प्रोटेक्शन का. दूसरा काम, जो एपिडर्मल सेल्स एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होते हैं, दे सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन द सरफेस. ठीक, जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, जो बाहर की सेल्स हैं, उनका जनरल काम तो हो गया प्रोटेक्शन, बट अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो सिक्रीट एरियल पार्ट्स मतलब लीफ की जब हम बात करते हैं, दे ऑल्सो सिक्रीट अ वैक्सी सब्सटेंस विच इज़ वाटर रेजिस्टेंट. वाटर रेजिस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन में कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, एंड ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगस एज वेल. अभी जब वैक्सी कोटिंग हम कर देते हैं तो वैक्सी कोटिंग होने की वजह से क्या, कोई भी माइक्रोब ग्रो नहीं करेगा, फंगस का एक्शन नहीं हो पाएगा. ड्राई एरिया होता है, जहाँ पे ड्राई होगा, थोड़ा ह्यूमिड होगा, पानी अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पे फंगस जल्दी ग्रो करता है. लेकिन हमने क्या किया, वैक्सी कोटिंग कर दी, जिसकी वजह से फंगस का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा. ओके, तो 3 फंक्शन कर दिए एपिडर्मिस का. पहला फंक्शन अगर ओवरऑल देखें तो 4 फंक्शन है, बट मेजर फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, प्रोटेक्शन. सेकंड, जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं वहाँ पे एपिडर्मिस कुछ वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमको प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता है ट्रांसपिरेशन का. ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर, प्लस मैकेनिकल इंजरी कम हो जाती है बिकॉज वैक्सी है, कोई भी चीज़ वहाँ के रुक नहीं पाती है, वो स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी. एंड फोर्थ वन, दैट इज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस. ठीक है, नाउ सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर. ठीक है, अब क्योंकि वो सबसे बाहर की लेयर बना रहे हैं एंड प्लस उसका काम है प्रोटेक्शन करना, तो हेंस एपिडर्मिस की लेयर हमेशा एक सिंगल लेयर सेल की बनी होती है. उसके बीच में आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इसके बीच में नहीं मिलेगा. अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा फिर कोई इसका यूज़ नहीं होगा, बिकॉज फिर तो कोई भी चीज़ यहाँ से एंट्री कर सकती है. ठीक है, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट. ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स. जो बाहर की वॉल है, सिंस प्रोटेक्शन करना है तो बाहर की वॉल आप देख रहे हो थिकंड है, ज़्यादा ब्लैक शो कर रहा है, अंदर की वॉल लेस थिकंड होती है. ओके, नाउ ऑन द एपिडर्मिस यू कैन सी दैट देयर आर स्मॉल पोर्स एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. ठीक, स्टोमेटा आर एंक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल्स विच आर गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स ही अल्टीमेटली गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा का खुलना या उसका बंद होना. ओके, सो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसी टाइम पे स्टोमेटा खुलता है, और मतलब स्टोमेटा पहले खुलेगा फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू होगा, और स्टोमेटा जब खुलता है तो साथ साथ वाटर लॉस भी साथ साथ होता रहता है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, अब आपको एक बॉक्स दिया, वहाँ पूछा थिंक विच गैसेज में बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. Plants take in CO2 and release out O2. So which gas is required? It is the CO2 that is required for the purpose of photosynthesis. ठीक है, फिर आपसे पूछा फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. तो ट्रांसपिरेशन का रोल क्या है, ट्रांसपिरेशन का रोल होता है एक तो एक्सेस वाटर को बाहर निकालना. ठीक है, साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट वेन एवर द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस, तो स्टोमेटा से जो पानी निकलता है वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, नो डाउट इन दैट, बट वाटर पहले स्टोमेटल पोर से बाहर निकल के लीफ के ऊपर स्प्रेड होता है. ऐसा नहीं ड्रॉपलेट के फॉर्म में उड़ जाएगा, वो पहले स्प्रेड होता है, और जब वो लीफ के ऊपर स्प्रेड होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपिरेशन का आ जाता है, इट मेंटेन्स और इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द लीफ. ठीक है, बाहर अगर बहुत गर्मी है तो लीफ का टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड विद दिस हाई टेम्परेचर
जो लीफ के सेल्स हैं वो मर सकते हैं, ठीक है। हेंस टू प्रिवेंट दैट, ट्रांसपिरेशन जब होता है तो लीफ पानी लॉस करती है, और पानी लॉस जब होगा तो लॉस इस तरीके से होता है कि लीफ के ऊपर पानी स्प्रेड हो, और स्प्रेड होते ही वहाँ पे जो पूरा सरफेस था वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। बाय 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक वो रिड्यूस कर सकता है, ओके। चलो, सो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। अभी तक आपने एपिडर्मल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम पढ़ा था, अब हम चलते हैं रूट की बात करते। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स। जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं रूट के, उसके कुछ एक्सटेंशंस निकलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स वो निकालता है, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, ओके। देन अभी ये तो था रूट का जनरल पार्ट और स्टेम का जनरल पार्ट, लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं। तो डेजर्ट कंडीशंस में क्योंकि पानी की बहुत स्कैर्सिटी होती है, बहुत कमी होती है, इसलिए वहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर एक कोटिंग होती है, थिक वैक्सी कोटिंग, जिसको हम नाम देते हैं क्यूटिन, ठीक है। क्यूटिन इज़ अ वाटर प्रूफ सब्सटेंस जो कि बाहर की साइड होता है ताकि ट्रांसपिरेशन एकदम कम हो पाए, ठीक है। चलो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? ऑब्वियसली यस, यंग स्टेम पे हमको एपिडर्मिस मिलता है, ठीक है, लेकिन ट्री के अंदर एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय द बार्क टिश्यू, ठीक है। ये दिस इज द डिफरेंस। मतलब जैसे जैसे प्लांट्स ओल्डर होगा तो वहाँ पे जो बाहर का एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू था वो रिप्लेस हो जाता है एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप हो जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के दो एग्जाम्पल थे, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक एग्जाम्पल था लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? लेटरल मेरिस्टेम फिर बाहर की साइड बार्क बनाता है और बार्क एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती है, ठीक है, इन द ट्रीज। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू undergoes certain changes. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. Cells on the outer side are cut off. जो बाहर की तरफ सेल्स होते हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, एंड दिस फॉर्म्स द several layer of thick cork or the bark of the tree. ठीक है, जो आप बाहर एक अनइवन सा स्ट्रक्चर देखते हो ट्री के ऊपर ब्राउन वाले पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द बार्क। उस बार्क के बीच में भी आपको स्पेसेस मिलती हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर के सेल्स बने, कॉर्क के सेल्स जो होते हैं, बार्क टिश्यू जिसको आप बोलते हैं, कॉर्क सेल्स जो होते हैं, दे आर डेड, ठीक है, डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इंटरसेलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, प्लस दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड एज सुबेरिन, ठीक है, इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्पर्वियस टू गैसेज एंड वाटर। सुबेरिन अगेन एक थोड़ा वैक्सी कोटिंग जैसा होता है जिसकी वजह से पानी का और गैसेस का कोई इफेक्ट उस बार्क के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए ट्री हमेशा बाहर की साइड बार्क बनाता है ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके, ओके, ठीक। तो ये आप देख रहे हो, ये एपिडर्मिस है, दिस फिगर 6.6 एपिडर्मिस था, अंदर वाले कॉक सेल, तो कॉक सेल जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ रहा है एपिडर्मिस रप्चर होता है, रप्चर होकर वो झड़ जाएगा, और फिर देन ऑल द एपिडर्मिस विच इज़ प्रेजेंट इन द यंग स्टेम दैट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉर्क सेल्स, एंड दोज कॉर्क सेल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म्स द बार्क, ओके। सो दिस वॉज अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। हमने 3 सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर आपने उसके बाद पढ़ा एपिडर्मिस का पार्ट, एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। फिर हमने पढ़ा कि यंग स्टेम और ओल्डर ट्री वाले स्टेम में एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाता है कॉक सेल से, दैट इज द बार्क सेल्स, ओके। सो दिस वॉज अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्लीज रीड आउट दिस पार्ट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्लास में भी अगर आपका जूम पे हुआ तो फिर मैं आपको पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस लिखवाऊंगा, ओके, और आई विल सेंड इन द ग्रुप वट एवर इज़ फिजिबल, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग दिस टिश्यू चैप्टर बिकॉज लर्निंग वाला बहुत सारा है और लर्निंग में टाइम हमको लगेगा, अलॉन्ग विद द लेबलिंग्स ऑफ द फिगर। जितने भी फिगर आपको दिए हैं इसको ड्रॉ करने को भी आपको आ सकता है और लेबलिंग तो पूछे ही जाते हैं, ओके। चलो, थैंक यू, देन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास।